So congratulations on that note and happy Teachers Day, because it's a very pious occasion. And now moving ahead towards introduction of my today's guest. He's a very renowned guy. If I talk about his journey, 5 years back, he was a very normal person. One of the renowned, professors in the Department of Physics in one of the colleges in Jalandhar. But 5 years back, he moved into the memory training, human memory training. It's a very unique memory sports, if I say. And now he has become one of the, memory championships across the region. And yes, not only in India, not only in Jalandhar itself, but across the nation and across the globe, he has attained so many awards. If I talk about his achievements, then उन्होंने 5 साल की इस सफर में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं. ही हैज रजिस्टर्ड हिमसेल्फ इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड असम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन दिस मेमोरी ट्रेनिंग, मेमोरी चैंपियनशिप. Yes, and he has done more than 100 live talks, and today he will be amongst us. His name is Professor Rajiv Kuvar. Yes, I am Coverpreet and he is Kuvar. So we'll be having a very strong and very interesting interaction today, because बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, because it's a very unique topic. So I would like, if Kuvar Rajiv sir is here, you can send me an hi so that I can send you the request. And yes guys, before I begin today, because ये बहुत ही genuine session होने वाला है, बहुत कुछ मैं उनको पूछूंगा, बहुत सारी live demonstrations होंगी यहाँ पर, and आप लोगों की मेरे को participation चाहिए. So you guys must actively participate in that. You can ask questions because he is a perfect trainer. स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कुछ पूछ सकते हैं उनको रिगार्डिंग हाउ हम अपनी जो मेमोरी है उसको कैसे शार्प कर सकते हैं. एंड हम जब क्रैमिंग करते हैं एग्जाम्स की, एंड देन वहां पर जब हम क्रैमिंग करते हैं हम भूल जाते हैं, तो अपनी मेमोरी कैसे शार्प करनी है ड्यूरिंग एग्जाम्स डेज. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं भी पूछूंगा, एंड यू गाइज आर ऑल्सो वेलकम टू आस्क हिम एनीथिंग. सो आई एम जस्ट वेटिंग इफ कुंवर राजीव सर इज हियर. Hi sir, okay, I've got your hi. I'm just sending you request. Guys, before he joins, I would request जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं लोग, ये वीडियो अपनी प्रोफाइल पर जरूर शेयर कीजिए अभी, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है. एंड आई पर्सनली विश कि बहुत सारे लोग जुड़ें, और ये जो हमारा जो आज का मोटिव है मेमोरी के ऊपर बात करने का, कैसे उसको हम शार्प कर सकते हैं, कैसे कुंवर राजीव सर ने इतना कुछ अचीव किया है जस्ट इन द स्पैन ऑफ 5 years. तो ये बहुत टेक्निक्स भी वो बताने वाले हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू शेयर दिस लाइव वीडियो ऑन योर प्रोफाइल्स फर्स्ट, एंड देन वी कैन मूव अहेड. ऑलराइट, राजीव सर, आई एम सेंडिंग यू द रिक्वेस्ट. प्लीज गिव मी अ सेक. आई हैव सेंट यू अगेन, प्लीज चेक. ऑलराइट, finally. Hi sir. Hi, Coverpreet. How are you doing? I think good. I had not liked the page. That's why I was not able to listen. I was not able to join you. I'm really very sorry. Okay. We got late It's by okay, a few sir. minutes. It's okay, sir. So, comfortable now? Shall we start? Oh, yes. No. All right, sir. Firstly, wish you a very happy Teachers Day, because you have been into this field since decades now. So, of course, you have taught so many students, thousands of students. And so wish you a very happy Teachers Day on this note. Thank you so much. Thank you. My best wishes for all the teachers of your institute and the world over. They are doing great work by learning online teaching and everything. Hats off to them. They are learning new techniques, and still they are trying to impart the knowledge, best of the best they can do. I'm really impressed by the efforts teachers are doing. Of course, sir. So, sir, let's begin. Yes. I guess connectivity issue is there your side. You can hear me now? Yes, I can. Just a minute. I will switch over the server. Okay. Of course. I mean, you need a Wi-Fi connection for this in this challenging era. Yeah, definitely. That too, video connectivity is a bit difficult to do. Of course, yes. So, sir, my very first question will be, we often, ask our students, who is your favorite teacher? But now I believe it's the right time that I ask you, who was your, or who is still yours favorite?
or who you look up to? I had I was lucky that way. I met so many teachers. They were all good. I always say, most of them they were Okay. wonderful, except few who used to beat to the brilliant students also. But I can say 90% of my teachers they were all good. That's why I was able to achieve something in life. You know, without teachers' blessings, it is not possible. Yes. So if I Yes. start naming, that will take a lot of time. In my school time, there was a teacher, Surinder Kaur. Okay. Surinder ma'am, we used to call her. And she was a brilliant teacher. Then I had a Bubble ma'am, English teacher. Then in my school days, I had a maths teacher, Mr. Mahajan. He was very good. In Okay. university time, Dr. Okay. Bhatti, and a name, they were all so good. Dr. Bhatti, Dr. Gill, Dr. Gurmukh, and I will keep on naming them. They were all good. I can say I was not good, that good, but I was really blessed by good teachers. But only thing I always say, I got so many good teachers. They taught us and they said, okay, now go and memorize and reproduce in paper. But nobody ever told us कि याद कैसे करना है. See, Exactly. Exactly. they सर used to तभी teach ये very सेशन well. रखा है. Article समझ में आ गया. Everything is understood. But याद कैसे Yeah. करना है पेपर में लिखना कैसे ये हमें किसी ने समझाया नहीं. तो मैंने इसी Of के course. ऊपर वर्क किया कि ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए. Exactly. Sir, my next question will be, if you have heard, there is a guy of 12-year-old. He is an Indian origin but born in Singapore. Dhruv Manoj. He has, attained 2 gold medals in the memory championship. And then he's just 12-year-old. And now if I talk about you, you are in your 50s and you have started, you have entered into this field of human memory just 5 years back, I suppose. So I don't think so there's an Yeah. age limit or age, definition of an age to enter into this field. So just tell our students or the, audience present here, how did you enter into this field? कहाँ से वो idea आया आपको कि मैंने, I have to learn these techniques? So, Kavalpreet, that's a very जी sir. brilliant question. From 9 to 90 years of age, anybody can improve his or her memory. I always say, people say Okay. कि Okay. एजिंग के साथ कुछ फर्क पड़ता है. आपने देखा कुछ लोग जो 80s तक फिट रहते हैं, साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, सब कुछ चलाते हैं. क्यों रहते हैं वो फिट? वो इसलिए कि वो अपने मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं. और हम लोगों ने Yeah. अपने ब्रेन, अपनी मेमोरी को आउटसोर्स कर दिया हुआ है. वी हैव बिकम डिपेंडेंट अपॉन लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स. तो नेचुरली Yeah. जिस मसल को हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो वहां पे हम कैसे एक्सपेक्ट करें वो एजिंग के साथ डाउन जाएगा ही जाएगा. तो इसलिए अगर आप 50s में, 60s में, 70s में जब भी आप किसी फील्ड में कुछ प्रैक्टिस शुरू करोगे तो आप उसमें अचीव कर सकते हो. आई रेड इन ए बुक दैट एक लेडी जिन्होंने 65 की एज में आई थिंक माउंटेनरिंग सीखनी शुरू की थी, जब लोग रिटायर होकर घर बैठते हैं, और उसने अपने 5-7 साल में अपनी एज ग्रुप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे. तो इसलिए एज के साथ कोई इसका रिलेशन नहीं है. यू कैन हैव अ वंडरफुल मेमोरी. ओनली थिंग दैट व्हाटएवर आई टीचर्स इन माय ट्रेनिंग, 6 घंटे की ट्रेनिंग में आप सीख के उसको प्रैक्टिस करते जाओ. और एल्डर्स के लिए तो मैं कहूंगा कि अपनी जिंदगी के अच्छे दिनों को याद करो और उनको मिनट बाय मिनट रिकॉल करो. सबसे अच्छा दिन तो शादी का ही होता है, अपनी शादी का. फिर जिस दिन कभी एप्रिसिएशन होती है, कभी जिंदगी में कोई बड़ा अच्छा काम मिला, अच्छा दिन बीता, वो सारे मिनट टू मिनट रिकॉल कीजिए. बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपकी मेमोरी बेटर होगी. आगे भी मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आम आदमी जो कहता है मैं भूल जाता हूं, आज के आपकी इस टॉक में भूलना भूल जाएंगे लोग. Looking forward to it, sir. Sir, so what do you think? I mean, आपकी इन सब बातों से मेरे को लग रहा है कि जो आपका टैलेंट है, that is not a talent, that is just a learning techniques. हम इसको फिर टैलेंट का टर्मिनोलॉजी नहीं करेंगे इसको. We cannot term it as a talent then. No, it is not. Anybody can acquire. अब मैं जब ये कहता हूं anybody, तो कहते शायद हमें मोटिवेट करने के लिए ऐसा कह रहे हैं. I guarantee you, anybody, मैं दावा करता हूं कि जब मैं ट्रेनिंग करवाता हूं ना 6 घंटे की, कोई भी, मैं आपको अगर कहूं कि मैं 70 ऑब्जेक्ट्स की आपको लिस्ट देता हूं, याद करो. कंवरप्रीत, यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप भी इमीडिएटली उसको याद नहीं कर पाओगे. 70 ऑब्जेक्ट्स की मैं. Exactly. और अगर 5 से 7 मिनट में आप उस 70 ऑब्जेक्ट की लिस्ट याद करोगे तो वो लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. कॉन्फिडेंस विच यू विल गेन that, oh, I have done something which I was not able to do earlier,
वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जिंदगी में आगे लेके जाता है। सिर्फ ये ऑब्जेक्ट्स याद करने ये कुछ नहीं। आपको हैरानी होती है अपनी मेमोरी के ऊपर। एक्चुअली वी आर ऑल बॉर्न विद इक्वल एंड वेरी गुड मेमोरी। द ओनली रीजन इज दैट वी आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज अवर मेमोरीज। अगर हम मेमोरी को ऑर्गेनाइज कर लें, और कोई भी कर सकता है, जस्ट लाइक बहुत सारी बुक्स लाइब्रेरी में पढ़ी हैं और वहां हम जाते हैं, कैटलॉग देख के बुक ढूंढ लेते हैं, पर अगर उन किताबों का वहां पे ढेर लगा दिया जाए, ढेर लगा हुआ बड़ा सा, तो चांसेस आर कि मिल जाएगा या न मिल जाएगा। फिर वो केबीसी पे बैठ के बोलते हैं, हाँ जी पढ़ा तो था पर याद नहीं। पढ़ा तो था मतलब किताब है तो यहीं मिल नहीं रही। वेरी उसको कॉमन बोलते हैं एक्सक्यूज है। ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और एनीबॉडी हु प्रैक्टिसेस, और कौन प्रैक्टिस करेगा? Okay. हर कोई नहीं करेगा, बिकॉज चेंज इज वेरी डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ। दैट्स व्हाई ओनली 2% बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। तो जिसके पास कोई ड्रीम होगा, तो इसलिए मैं हमेशा यही बात करता हूं। आपने कहा कि आप इस फील्ड में कैसे एंटर हुए, मुझे नहीं पता था मैं इस फील्ड में जाऊंगा। हाँ, मेरा एक ड्रीम बड़ा क्लियर था कि दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। मेरी पिछली जिंदगी बहुत बढ़िया बीती है, अब आगे देखते हैं आगे कुछ और क्या किया जा सकता है। मुझे बचपन का ड्रीम याद आया, और जब ड्रीम याद आया तो नेचर ने यह रास्ता दिया। आई रेड ए बुक, Okay. वहां से मुझे एक्साइटमेंट हुई। तो आई ऑलवेज से डोंट थिंक आप क्या करना चाहते हैं, मेरे से प्रभावित होकर मेमोरी के फील्ड में बिल्कुल ना जाइएगा। आप अपना ड्रीम फाइंड आउट कीजिए, वो आपके अंदर है। जिस दिन ड्रीम मिला ना, इस नेचर के पास हजारों पाथ हैं आपको अपने आपके ड्रीम तक पहुंचाने के लिए। कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ पूरी जाती है कायनात। आपको उससे मिलाने के लिए। ये फैक्ट है, ये ऐसे नहीं डाले जाते फिल्मों में। ये वो 500 करोड़ का बिजनेस उनका ड्रीम होता है, तभी ये डायलॉग आते हैं अंदर। तो इसलिए एग्जैक्ट। ड्रीम फाइंड आउट करिए, नेचर को रास्ता देने दीजिए। कभी भी रास्ता खुद ना ढूंढिएगा। हम एक अदना से इंसान हैं, हम डर जाते हैं अपने ड्रीम से, पर जब हमें पता चलता है कि एक यूनिवर्सल पावर हमारे साथ एसोसिएटेड है और वो मुझे रास्ता देगी, तब सब रास्ते आपको वो सबसे इजीएस्ट पाथ देगी। मैंने हमेशा आज तक यही कहा कि मेरी जिंदगी बड़ी इजी रही है, आगे भी इजी रहेगी, और इजी ही रास्ता मिला। टुडे आई एम इंटरेक्टिंग विद यू। इससे इजी रास्ता क्या हो सकता है? एंड यू आर डूइंग योर वर्क ऑल्सो। Yes, of course. Asaka, I cannot hear you. Can you hear me? I can hear you. I can hear you. All right, done, done, done. I'm getting. All right, sir, moving ahead. Before that, I would ask how many students are here? जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे सिटी ग्रुप के और कोई भी अदर इंस्टीट्यूट के, काइंडली कमेंट सेक्शन में हाई भेजिए। ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड हियर, बिकॉज अब जो मैं पूछने वाला हूं दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है जो मैं राजीव सर के थ्रू करवाना चाहूंगा। So all the students who have joined here, kindly send an hi in the comment section. Thank you so much. Yes, sir. Moving ahead, I was very surprised when I was, researching for you for on your life journey and entire your professional life as well, especially into this human memory. I got to know that you have made a very interesting record of memorizing capitals of 95 countries in mere 1 minute. That is 1 minute miracle if you have termed that. So एक live demonstration हो रहा है सर उसकी 95 capitals of countries in just 1 minute. हाँ, ये कमलप्रीत देखो, आइडियाज है मुझे बड़े, मेरे स्टूडेंट्स मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं और बाद में कहते हैं सर हम रिकॉर्ड क्या बनाएं। तो मैंने कहा मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने वर्ल्ड चैंपियन के साथ इंटरेक्शन की, उनकी ईमेल्स के थ्रू कन्वर्सेशन हुई, मैंने उनका वर्क अप्रिशिएट किया, मैंने अपना किया, पर कभी किसी से ये नहीं पूछा ये कैसे करना है। ये स्टूडेंट्स की बड़ी दिक्कत है। कुछ काम करते हैं ना, क्यों पूछते हैं कि मैं ऐसे करूं कि ना करूं? क्योंकि उनको डर होता है मेरी एफर्ट वेस्ट हो जाएगी। अब एफर्ट, ये एफर्ट कितनी वेस्ट होएगी, राइट? तो इसलिए मैंने कभी नहीं पूछा। तो ये रिकॉर्ड मुझे ऑनलाइन मिला। सबसे पहले किसी ने 48 कंट्रीज, एक जर्मन थे, उन्होंने 48 कंट्रीज एंड कैपिटल्स रिकॉल किए थे। फिर एक इंडियन भोपाल से थे, उन्होंने 52 कर दिए। और जब जज साहब आए हमारा रिकॉर्ड देखने के लिए, तो वो बड़े घबराए हुए थे, कहते अगर 53 भी हुए, पूरे ना हुए, तो मैं रिकॉर्ड नहीं बनाऊंगा। मैं कहा सर आप चिंता ना कीजिए, मैंने इतनी प्रैक्टिस किया है, मैं 90 से ऊपर करने वाला हूं। वो एकदम बड़े खुश हुए। आज मेरे बहुत अच्छे रिगार्ड मैं उनका करता हूं। वो खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है जो मेरे जज बने थे। तो मैंने 95 मेरे पर्सनल एफर्ट थी अपने रूम में, पर पब्लिकली 400 स्टूडेंट्स के सामने जब मैंने किया तो आई वॉज एबल टू अचीव द सेम। यहाँ पे मैं आपके सामने 95 तो नहीं कर पाऊंगा, आप काउंट कर लेना, कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि ये चीजें अगर मैं कुछ दिन प्रैक्टिस करूं तो ही ये बढ़िया हो पाती हैं। अदरवाइज आई विल रिपीट कंट्रीज। मैं वैसे YouTube पे भी डाल दूंगा आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए।
China, Beijing, Mexico, France, Paris, Argentina, Buenos Aires, Venezuela, Caracas, India, New Delhi, Philippines, Manila, UK, London, Ukraine, Kyiv, Peru, Lima, USA, Washington, Ethiopia, Addis Ababa, Italy, Rome, Uganda, Kampala, Malaysia, Kuala Lumpur, Indonesia, Jakarta, Vietnam, Hanoi, South Africa, Cape Town, Sudan, Khartoum, Uzbekistan, Tashkent, Brazil, Brasilia, Egypt, Cairo, Myanmar, Naypyidaw, Algeria, Algiers, Saudi Arabia, Riyadh, Pakistan, Islamabad, Iran, Tehran, Tanzania, Dodoma, Poland, Warsaw, Nepal, Kathmandu, Nigeria, Abuja, Germany, Berlin, South Korea, Seoul, Canada, Ottawa, Mozambique, Maputo, Bangladesh, Dhaka, Turkey, Ankara, Colombia, Bogota, Iraq, Baghdad, North Korea, Pyongyang, Russia, Moscow, Congo, Kinshasa, Spain, Madrid, Morocco, Rabat, Australia, Canberra, Japan, Tokyo, Thailand, Bangkok, Kenya, Nairobi, Afghanistan, Kabul, Sri Lanka, Sharjah, Mandakote, Ghana, Accra, Malawi, Lilongwe, Chad, Andy Jumano, Netherlands, Amsterdam, and that's it. I have not practiced from quite a long time, so I will not repeat it because that speed I'm not getting, which I got over there. And those who want to see my YouTube channel, The Memory Trainer, you can see the video is there, and I have done it live in a university, right? And sir, So kudos to this is you, how. kudos to you. Kamalpreet, मेरे को you want to make this record? You want to make this record? I can guide of you. You course, have to practice. Anybody. I'm not saying Kamalpreet. Everybody is Kamalpreet for me. Anybody who yeah, wants to make this record, he needs to have dedication, wow. follow certain instructions, and within 3 to 4 months, it's done. You can break my record. I don't say सर I मेरे have a को very ना big personality and I have done it. Anybody can do it. Anybody. सर मेरे को अपने स्कूल डेज याद आ गए जब हम रट्टे लगाते होते थे एंड देन जब हम एग्जाम लिख Oh देते yes, थे देन इट ऑल फेड्स अवे सो वो मेरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट it क्वेश्चन will. है बट कमिंग बैक माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सर वी हैव ऑल फेस्ड लॉकडाउन अ वेरी चैलेंजिंग फेज था ये हमारे लिए पिछले 3-4 महीने रहे हैं जो सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन you are also a Yes. positive speaker so how did you accept this covid challenge and what have you done in all those 3 months the online trainings and all how did you manage it कमलप्रीत, ये आइंस्टाइन ने कहा था कि जो हर इवेंट में पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं ना, उनको कोई रोक नहीं सकता. मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही गाइड करता हूं कि या तो सारा दिन न्यूज चैनल लगा के देखो कितने गए कितने रह गए और क्या हो रहा है और चाइना पे कब्जा हम कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, ऐसे उनको देखोगे तो ये लगता है दुनिया तो गई. बट मैं yeah उस पर फोकस नहीं करता. देर आर टू एरियाज. वन इज एरिया ऑफ कंसर्न, अदर इज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. अब एरिया yeah ऑफ कंसर्न क्या है कि चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, कोविड से क्या हो रहा है, और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि मैं इस दौरान जो क्या करूं, मैं अपने आप को सेल्फ ग्रो कर सकता हूं. आई रेड सो मेनी बुक्स, आई सॉ सो मेनी वीडियोस, आई प्रैक्टिस फ्यू रिकॉर्ड्स. 8 रिकॉर्ड मेरे प्रैक्टिस्ड हैं. अगर मुझे एक हफ्ते के wow नोटिस पे वो रिकॉर्ड बनाने को मिल जाए तो मैं वो 8 रिकॉर्ड अभी बना सकता हूं. मैंने वो प्रैक्टिस किया. wow तो अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की बहुत से स्टूडेंट्स को जो बहुत दूर दूर बैठे हैं, 6 कंट्रीज से लोग ज्वाइन करते हैं, हर संडे मैं ट्रेनिंग करता हूं, तो वो मैंने उसके ऊपर बहुत जोर दिया. वीडियो कोर्सेज के ऊपर बड़ा कुछ किया मैंने. और आई थिंक कोविड से पहले जो मैं था, आज मैं उसमें मेरे में बड़ा चेंज है. तो आई विल गिव यू मैसेज कि आप जो अपने इन्फ्लुएंस में है ना वो करो. बाकी मीडिया को, दुनिया को करने दो. वो हमें नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं देंगे. आप मुझे बता दो of किसी course भी मीडिया में कोई पॉजिटिव न्यूज आज आई हो पहले पेज पे, कहीं नहीं मिलेगी आपको. तो इसलिए वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ. और कुछ भी नहीं करने की जरूरत, अपने ऊपर वर्क करो बस. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ना. तो ये खुद ही को बुलंद करना ही मैं लोगों को बताता हूँ. और अपने ड्रीम पे वर्क कीजिए. इफ यू कैन फाइंड दैट ना, इससे बड़ा काम कोई नहीं होगा. हो सकता है इसको 10 साल लग जाए, पर ड्रीम जिस दिन मिल गया ना, आपकी जिंदगी बदल जाए. So this of is what course I sir want to of say course to all. एंड इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ सर जितने भी पीछे 3-4 महीने रहे हैं जब हम घर पे थे कैंपसेस वर ऑफ तो हम घर से काम कर रहे थे बट देन अगेन एज यू सेड कि आपने रिकॉर्ड्स प्रैक्टिस किए. सिमिलरली है आई हैव एक्सेप्टेड द सिचुएशन पॉजिटिवली एंड अपने पे वर्कआउट करना शुरू किया. और ज्यादा वेबिनार्स लिए कितना कुछ वीडियोस वगैरह बनाया, स्प्रेडेड पॉजिटिविटी अराउंड. जहां आपने बात करी मीडिया की, there have been no positive news on the front page say till now. Yes, it is quite true a fact because I belong to this industry and sir मैंने एक चीज अपनी वीडियोस में भी बोली थी कि ये हमारे हाथ में नहीं है कि मीडिया क्या दिखा रहा है, बट ये हमारे हाथ में है कि हमने देखना है या नहीं देखना है या कितना % देखना है. So it all depends on us or the acceptance You are power right. कि हमने कितना अपने अपने माइंड में क्या लेके जाना है. So it's just one of the advices for all the students here. Rather than criticizing media or rather than searching negativity, we can divert our focus Actually, like you did, like I नेगेटिव did. दिखता है ना, दिखता ही नेगेटिव है. दिखता ही नेगेटिव है इस दुनिया में. वी आर लिविंग इन अ नेगेटिव वर्ल्ड.
तो पॉजिटिव कोई खरीदता ही नहीं है तो कौन बेचेगा? नोबडी सेल्स। तो पॉजिटिव इसीलिए कहते हैं दुनिया में राइज करना है तो आपको खुद को पॉजिटिव करना होगा। तो दैट्स Yes, पार्ट ऑफ माय माइंड ट्रेनिंग कि हाउ टू look positive in even negative events, of right? course, And of the course. things Right. there are so many positive things which are happening, like we are learning a lot. स्टूडेंट से मैं स्टूडेंट को Yeah. सबसे पहली बात कहता हूँ कि स्टूडेंट्स, आप या तो सारा दिन रोते रहो कि देखो जी ये क्लासेस लग रही हैं, इसमें आवाज नहीं आती, डिस्कनेक्ट हो जाती है, दूसरा घर बैठ के गेम खेल लो, पबजी तो बंद हो गई, अब फौजी आ गई है। बट दूसरी चीज है कि आप ये देखो अगर 60 70 80% भी डिलीवर हो रहा है ना, तो इट इज सो गुड कि आप अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठे हो, आपको रोड्स पे नहीं चक्कर लगाने पड़ रहे, आप घर में आराम से बैठ Yeah. के सीख रहे हो, जितना सीखने को मिल रहा है सीखिए। बट जिन्होंने जी, नहीं सीखना, आप जो मर्जी फोर्स कर लो। आपके साथ भी ऐसे स्टूडेंट्स रहे of हैं, course. हमारे साथ भी रहे हैं। Of course. Right, तो right, right. पॉजिटिविटी फाइंड Sir, आउट करना जरूरी है। my next question will be, you have, decades of experience into teaching now. I guess over 25 years now. So, my question is, if I talk about myself or all the students here, या जब आप अपने बचपन की बात करें, स्कूल लाइफ की बात करें और कॉलेज लाइफ, एग्जाम के एक दिन पहले हम रट्टा लगाते थे. We used to cram the formulas or the tenses of English and all. But then again, जब हम पेपर लिखते थे उसके बाद हमें सब कुछ भूल जाता था immediately or after one day or the other. So, sir, what do you think? Is there, I mean, the education system of India, हम कहीं ना कहीं पे lack कर रहे हैं, जैसे हम, teachers are teaching the way, or it's just fault of a student, or both ways? What do you have to say on this? एजुकेशन सिस्टम तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। द रीजन बीइंग कि आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओज हमारे इंडियंस ही हैं और इसी एजुकेशन से निकल के गए हैं। जी, कमलप्रीत, यू विल आल्सो एग्री विद मी कि एजुकेशन इतनी मैटर नहीं करती है, आपके यहाँ पे क्या है वो बहुत मैटर करता है। ये मैं बहुत पहले पढ़ा करता था पर मुझे पता नहीं था। देखिए आप क्लास में कुछ टॉपर्स बच्चे होते हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो टीचर जो स्टूडेंट्स को हम एवरेज समझते होते हैं वो राइज कर जाते हैं जिंदगी में, चाहे फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से वो राइज करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो राइज right. नहीं करते। तो इसलिए उनके जी, माइंड में क्या चल रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे अब पुराने टाइम में देखिए गुरुकुल्स होते थे, वहां पे वो कोई किताबें थोड़ी रटाया करते थे, वहां पे वो कुछ हाँ, माइंड ट्रेनिंग, बॉडी ट्रेनिंग एंड सोल ट्रेनिंग, ये सब कुछ किया जाता था उनके साथ। वो कहते हैं yeah, जी आपके अंदर वो हमने जागृत कर दी है, ये सारा कुंडलनी और एंड सो मेनी थिंग। और हमारे यहाँ yeah, क्या सिस्टम हो रहा है, हम उसमें अगर माइंड ट्रेनिंग को ऐड करते हैं, सिस्टम बिल्कुल ठीक है, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम उसमें माइंड ट्रेनिंग ऐड कर दें, फॉर विच आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, हम एक पूरा ग्रुप है इंडिया में जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूं, कि ये चीज अगर okay, इंट्रोड्यूस कर दी जाए, योर माइंड इज द मोस्ट पावरफुल गैजेट इन द वर्ल्ड। हाउ टू ट्रेन of इट, course, बॉडी को ट्रेन हम बड़ा करते हैं जिम जाके और दिखाते हैं, पर ये जो सुपर गैजेट हमारे पास है, जिसकी मेमोरी, सिर्फ मेमोरी की बात करूं तो ये सुपर कंप्यूटर से 50,000 टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी है। अगर आपके ब्रेन को एक हम हार्ड ड्राइव मान ले और इसमें एचडी क्वालिटी वीडियो फीड कर दें, तो ये वीडियो 300 साल तक रन होगा। पर बात यह है कि कंप्यूटर 40,000 का मिलता है, हम 2 लाख वाला कंप्यूटर कंपटीशन में खरीदते हैं, पर हमें इस्तेमाल करना ही नहीं आता, तो वो 2 लाख तो वेस्ट है। और ये तो 2 लाख of भी नहीं course, खर्चे, ये फ्री में मिला हुआ है, लोग इसका इस्तेमाल करना जी, सीखते ही नहीं है। ये नहीं उनकी कोई गलती है, nobody tells them कि ये भी करना जरूरी है। yeah, अगर हम अपने माइंड को ट्रेन कर लें तो यू वोंट बिलीव कि जिंदगी जैसी मेरी जिंदगी में 4-5 साल में बदलाव आया, इट इज ओनली मैंने इनर चेंजेस किए हैं, एक्सटर्नली कुछ भी नहीं किया। आई नेवर न्यू कि मैं इस फील्ड में आऊंगा। आई ऑलवेज ट्रेन्ड माय माइंड कि माय लाइफ इज गोइंग टू बी वंडरफुल, आई एम गोइंग टू रीच माय ड्रीम एंड आई एम प्रेटी श्योर कि okay, इट इज गोइंग टू हैपन। आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट्स कि हाउ टू बिलीव इन okay, योरसेल्फ। यही कोई नहीं सिखाता हमें। तो जिंदगी पूरी की yeah, पूरी बदल सकती है। एंड आप जिंदगी में जो बड़े से बड़ा ड्रीम हासिल करना चाहते हैं, आप हासिल कर सकते हैं बड़े आराम से। और ड्रीम वही होता है जो of आपके course, अंदर है और आपको सोच के लगता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, मेरे लिए नहीं है, तो नहीं हो ऐसे ही मैं ख्वाहिश, जो डराता है आपको ना, और पर बार बार आता भी है, वही है ड्रीम आपका। आप सप्रेस कर रहे हैं, सकता, आप अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट कर रहे हैं। तो इसलिए of course, दीज थिंग्स आर टू बी एडेड, अदरवाइज सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, दुनिया में लोग एक्सेल कर रहे हैं और जमीन का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस कंट्री में हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे जो है, जैसे एक स्टोरी है बड़ी सिंपल सी, कि गुब्बारे वाला गुब्बारा बेचता है, एक बच्चा आगे उसको कहता है कि अंकल ये ब्लैक गुब्बारा भी उड़ता है, तो वो कहता है इसको मैं बच्चे को क्या बताऊं कि ब्लैक डजंट मैटर, गुब्बारे के अंदर क्या है वो मैटर करता है, आपको ऊंचाइयों पे लेके जाता है। द सेम थिंग इज हियर विद अस आल्सो। तो अगर एक जिसको हम नालायक स्टूडेंट कहते हैं ना, ये पढ़ता नहीं है, अगर उसको भी ट्रेन कर दिया जाए
तो जीनियस बना सकता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जीनियस बना सकता हूं उस बच्चे को, मुझे ये पता है कि ये कैसे करना है, बट प्रोवाइडेड वो विलिंग हो कि मैं भी कुछ बनना चाहता हूं, राइट? Yes, yes. That is the major point. अच्छा sir, I just want to mention here, for your kind तो मेरे आंसर information, ज्यादा लंबे तो Citigroup नहीं हो has, रहे हैं? नहीं नहीं sir, मैं कह Citigroup has started इट्स ओके। a Department of Happiness, right? A center of Oh yes, happiness where we train people on positivity, how to, remain positive and spread smiles. And as we were discussing कि हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढना, तो हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो ये सब करते हैं, बच्चों के साथ सेशंस लेते हैं, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग वेरी सेशंस गुड, लेते हैं। वेरी गुड, बट ये आपने एक्सीलेंट। बहुत अच्छी चीज यहाँ पर बोली है, दैट वी शुड इनकलकेट एंड इंट्रोड्यूस मेमोरी ट्रेनिंग एज वेल। वो बहुत जरूरी है, एंड आई बिलीव नॉट ओनली ऑन द कॉलेज लेवल, इट शुड बी ऑन द ग्राउंड लेवल, स्कूल लाइफ में। आई मीन इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, यू हैव सेड इट राइट। देखिए उसका उसका रीजन ये है कि देखें, अगर एक दो दो डॉक्टर्स की बात करते हैं, दो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे कोई भी प्रोफेशनल्स है, एक प्रोफेशनल जो है उसकी मेमोरी अच्छी है, दूसरे की वीक है। जिसकी मेमोरी अच्छी है, जो भी केसेस वो डील करेगा वो माइंड में स्टोर हो जाएंगे, ब्रेन में। दूसरा लैपटॉप में स्टोर करेगा, जब कभी इमरजेंसी आएगी तो लैपटॉप वाला ज्यादा बेहतर वर्क करेगा कि मेमोरी वाला। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि इफ यू वांट टू बी ए गुड प्रोफेशनल, तो आपको अपनी मेमोरी, अगर तो आपकी शार्प है, इट्स ओके, आप इसको या शार्प बना सकते हैं। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करवाता हूं, मैं उनको कहता हूं आपकी रिक्वायरमेंट बताइए, क्या क्या याद करवाना चाहते हैं, तो मैं उसी चीज पे फोकस करूंगा, सारा कुछ क्यों करवाया जाए। स्टूडेंट्स को अलग तरीके से सिखाया जाता है, तो एनी बॉडी कैन डू इट। अगर एक प्रोफेशनल बहुत अच्छा है पर उसकी मेमोरी वीक है, वो अपनी मेमोरी को शार्प करे, ये जरूरी है। और डेटा को ऑर्गेनाइज करना, मैंने आपको पता केबीसी को चैलेंज किया था कि इधर यू इनवाइट मी, या तो मैं पूरा अमाउंट लेके जाऊंगा, मेरे न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड है और वीडियोस भी हैं, या जीरो पे, बीच में क्विट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये सारा सिस्टम स्टडी किया कि लोग केबीसी में बैठ के कहते हैं मैंने पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, पर ऐसे पढ़ो कि वो याद आए ही आए 100%, 100%, तो उसको पढ़ना बोलते हैं। अदरवाइज किताब खोल के तो बहुत से लोग बैठते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन। हमें कंसंट्रेशन नहीं सिखाई जाती, हमें डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली सिखा दी जाती है, हमें पता नहीं चलता। तो 24 आवर्स से 18 आवर्स हम डिस्ट्रैक्शन करते हैं, तो कंसंट्रेशन तो कभी प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर मेमोरी कैसे अच्छी हो सकती है? स्वामी विवेकानंद जी की मेमोरी के बारे में बड़ा जिक्र आता है, वो एक दिन में 3 किताबें पढ़ लिया करते थे। लोग कहते थे ये ड्रामा कर रहे हैं, तो वो कहते थे ओके जेंटलमैन, आप पूछिए क्या पूछते हैं, और वो पेज वाइज बता देते हैं किस पेज पे क्या लिखा है। तो ये मेमोरी कोई उनकी मैजिकल नहीं थी। उन्होंने जब वो आश्रम में थे, उन्होंने खुद इतनी प्रैक्टिस की, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की कि उनकी, आप एनी बॉडी आज की डेट में भी, मैं ये नहीं करता मैंने, बट बहुत से लोग ऐसे कर रहे होंगे जिनको, जो लाइमलाइट में ही नहीं आते। तो कंसंट्रेशन इज अनदर की, जिसके ऊपर वर्क करना सिखाया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं सर बच्चा किताब खोल के पढ़ता तो बहुत है पर नंबर नहीं आते, क्योंकि किताब खोलना एक अलग बात है, पर उसको पढ़ना दूसरी बात है कि क्या आप उतने मिनट किताब पे हो कि नहीं हो। तो दैट इज कंसंट्रेशन। मैं इसके ऊपर बहुत जोर देता हूं, दिस इज नेचुरल वे ऑफ, यस। तो मैंने किताब उठाई है, होता क्या है, किताब पेरेंट्स को तो दिख रहा है किताब है, किताब के अंदर क्या है, मोबाइल फोन है या कुछ है, वो डिस्ट्रैक्शन है। तो वो हमें दूर करना है, दैट इज जस्ट। मैं वो बात नहीं कर रहा, वो शरारती बच्चों की बात है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सीरियसली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो उनको समझ नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रहे। क्यों? आपको बताऊं, एक बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बुक है ब्रूस लिप्टन की, वो कहते हैं कि बच्चे का प्रोग्रामिंग जो है वो पहले 7 साल में, जिंदगी के फर्स्ट 7 इयर्स में ये प्रोग्रामिंग हो जाती है। और उस प्रोग्रामिंग का क्या रोल है कि आपकी जिंदगी को वो प्रोग्रामिंग 90 है। अगर मैं इस बोल रहा हूं तो 95% आप जो परसीव कर रहे हैं ना, वो उसी प्रोग्रामिंग से है। और 70,000 to 90,000 थॉट्स हमारे दिमाग में चलती हैं। किताब खोली है, बीच में थॉट इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? इन थॉट्स को कम करना। और जो बड़े बड़े गुरु हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन थॉट्स को कम किया। गुरु नानक देव से लेके किसी भी गुरु तक, आप जैन धर्म, बुद्ध धर्म, किसी भी धर्म में चले जाओ, वो लोग जिनको हम फॉलो करते हैं वो कौन है? उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, एक चीज के ऊपर फोकस करने की प्रैक्टिस की। और हम कहते हैं उनकी पूजा करो, और हम भी वहां पहुंच जाएंगे, पूजा करो, बट जो उन्होंने किया उसको प्रैक्टिस ज्यादा करो। तो लोग किताबें 100-200 पढ़ लेंगे पर अप्लाई नहीं करते, उसको प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं जो बात कर रहा हूं कि ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी सिखाई जानी चाहिए स्कूलों में।
जरूरी है बच्चों को यंग एज में अगर करवा दो। आपने एग्जांपल दी 12 साल का बच्चा, आप मुझे 10 साल का बच्चा ला दो, 2 साल मुझे लगेंगे, उसको मैं उसी लेवल पे ले आऊंगा जो 12 नेचुरली कोई ऐसा हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने इस फील्ड में इसीलिए काम किया कि स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है याद करने में, तो उनके लिए कुछ काम किया जाए। So one of the comments here is of Sakshi Sharma. How can we work on the concentration? So quick tips about it. कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। आप प्राणायाम में जो है एक आती है अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये दो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप मेडिटेशन के बारे में बात करें तो हर धर्म में मेडिटेशन, ध्यान लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पर लोग ध्यान लगाते हैं, साथ में ये भी ध्यान होता है कि दूध तो नहीं उबल रहा, वो बाहर बेल होगी कौन आया। दैट इज नॉट कॉल्ड ध्यान। ध्यान का मतलब अपनी सोच को कंट्रोल करना, अपने मन को काबू करना। 4 लफ्जों ने मेरी जिंदगी बदली, मन जीते जग जीत। तो मन जीते जग जीत, इसके ऊपर मैं 2 घंटे लगाता होता हूं अपनी ट्रेनिंग में कि कंसंट्रेशन कैसे की जाए। एक मैं आपको मेडिटेशन बता रहा हूं। मेडिटेशन भी ये नहीं कि कहीं जाके आप बैठ जाओ और सीखना शुरू कर दो। मैंने कहीं से नहीं सीखी, मैंने घर बैठे बैठे सीखी, और पर सीखी ऐसे कि उसको प्रैक्टिस किया मैंने। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। लोग फैशन के मारे कभी किसी 5 स्टार में कराएंगे, कभी किसी जगह कराएंगे, वो सब दिखावे की चीजें हैं। अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया तब तक कोई फायदा नहीं है। तो तीसरी चीज है, आप रिवर्स काउंटिंग कीजिए सामने दीवार के ऊपर, अपनी सोच को काबू करने के लिए रिवर्स काउंटिंग 100, मैं ऐसे करता हूं प्रैक्टिस 100, फिर मैं सामने दीवार पे आंखें बंद करके दिख रहा है मुझे 100, फिर 99, 98। आप 2-4 नंबर काउंट करते ही भटक जाओगे, बट प्रैक्टिस करते रहना है। इसको कंसंट्रेशन सिखानी पड़ेगी। आपको पता है ये आपका मास्टर है, आपने इसकी मास्टरी कर लेनी है और इसको ये समझा देना है कि आज के बाद तुम वो सोचोगे जो मैं चाहता हूं, जो तुम चाहते हो वो नहीं होने दूंगा। ये मास्टरी अगर आपने कर ली तो उसको बोलते हैं मन जीते जगजीत। बचपन में मूवी देखी, बहुत अच्छी लगी, पर मतलब समझ नहीं आया कि मन जीते जगजीत क्या है। ये मन जीते जगजीत में आपकी सक्सेस है, किसी भी फील्ड की सक्सेस है। तो मन को काबू करना जरूरी है, अदरवाइज हार्ड वर्क से आप कर सकते हो। हार्ड वर्क वाले भी पहुंच जाते हैं, सीईओ की पोस्ट तक पहुंच जाएंगे, वो भी फोकस्ड होते हैं, वो उनकी भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तभी वो लोग राइज करते हैं। राइट, आपकी मैनेजमेंट में होंगे, आपके इंस्टीट्यूट में होंगे ऐसे लोग जो कॉन्सेंट्रेटेड हैं, एंड दे मस्ट बी टीचिंग, पर आप सुनते ही नहीं उनकी। आप तो सुनते हो जो गाना गुना सुना दे, कुछ ऐसी कुछ मजाक सा करता रहे, वो ठीक है, जो सीरियस बात ही सिखाए उसकी तरफ हम होते नहीं। तभी मैंने कहा नेगेटिविटी बिकती है, पॉजिटिविटी को बाहर नहीं है। इसीलिए दुनिया में हम रह रहे हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव करना सीखिए खुद, किसी ने नहीं आके पॉजिटिव करना। कंवरप्रीत, तुम्हें जिंदगी में कितने लोगों ने कहा कि कंवरप्रीत यू आर ग्रेट एंड यू विल एक्सेल इन लाइफ? कितने को लोग मिले होंगे? बड़े कम लोग मिलते हैं, और टांगे खींचने वाले बहुत मिलते हैं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग कब होगे? जब आपका ड्रीम क्लियर हो जाए ना, फिर आपको दुनिया में कोई नहीं रोक पाता। इंसान तो कुछ भी नहीं है आपके, आपकी बड़ी ऑपोजिशन होगी, गुरुओं की भी ऑपोजिशन बहुत हुई, फैमिली से ऑपोजिशन हुई, बट बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। Very nice. I mean, I have learned so many techniques, and I hope मैं implement करूँगा, जितनी audience है यहाँ पे वो implement करेंगे. Right, sir. Moving ahead, I have also jotted down that आपने, अगर मैं आपको कोई date of birth दूँ, तो आपको पुराना 1000 सालों पुराना कैलेंडर याद है। So एक छोटी सी demonstration हो जाए। I have a couple of dates, date of birth, तो मैं वो बताऊंगा और आपने मेरे को दिन बताना है। एंड जितनी ऑडियंस यहाँ पर जुड़ी है, इफ यू ऑल्सो वांट कि सर आपका डे ऑफ बर्थ बताएं, तो कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ छोड़िएगा, सो दैट आई कैन आस्क हिम एंड ही विल क्विकली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो बता देंगे वो उस दिन, आई मीन व्हाट वाज द डे ऑन दैट डेट। राइट सर, सो एक बात और बता दो, एक बात और बता दो, शकुंतला मैडम के ऊपर मूवी बनी है, शकुंतला देवी मैथमेटिशियन है ना, मूवी बनी है अभी। वो ये काम किया करती थी, तब हम बड़े छोटे थे, और मैं जब उनको देखता था बड़ा प्रभावित होता था, मैं उनका बड़ा फैन था। बट सैड पार्ट वाज कि जब उनसे पूछा जाता कि ये कैसे किया जाता है, तो शी वुड से दैट्स माय पर्सनल, आई विल नॉट शेयर। बट मैं आपको बता दूं, मैं अपनी ट्रेनिंग में 15 मिनट में हर इंसान को समझा देता हूं कि ये ऐसे करना है, क्योंकि गूगल पे जाओगे तो बड़ी डिफिकल्ट मेथड्स हैं। मैं आपको ऐसा इजी मेथड देता हूं कि आप 15 मिनट में सीख लो, प्रैक्टिस करने में हफ्ता लग सकता है, एंड देन यू आर लाइक मी ओनली, जैसे मैं आपको बता दूंगा। दिस इज नॉट अ बिग थिंग, दैट्स अ स्मॉल थिंग, बट मैं अपने आप को वो बहुत वो नहीं साबित करना चाहता। आई हैव टॉट टू माय थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें से हंड्रेड्स तो ये कर लेते हैं। राइट, ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। आप पूछ सकते हैं कोई भी डेट, क्योंकि अगर कंवरप्रीत पूछेगा तो वो कहेंगे ये फिक्स्ड है, अगर कंवरप्रीत पूछेगा तो कहेंगे ये फिक्स्ड है। That's what. अच्छा, फिर कमेंट सेक्शन में भी आ रहे हैं
First is Ashwini Rana, October 9, 1978. Monday. अश्विनी जी साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा, अंगूठा छोड़ते जाइएगा. राइट सर. नेक्स्ट इज तरुण शर्मा, 28 जुलाई 1986. मंडे, ये भी मंडे. वाओ. सारे मंडे गाइस अगर ये ट्रू है सो काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट सर मंगला सानी, 16 जून 1987. Tuesday. All right. Okay, sir. I have a couple of dates written in my diary, and guys, मैंने इनको नहीं बताया. It's a very raw interview going on, so kindly do not doubt because आपके सामने है ये experiment. So, sir, my next is हमारे वर्दी चेयरमैन सर का बर्थडे है August 15, 1949. It was Monday. Wow. All right. हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर का है August 12th, 1981. It was Wednesday. Oh my God. Okay, next is sir हमारे वाइस चेयरमैन December 3, 1988. Saturday. Oh my God. Alright sir, हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ आ रहा है. अनुपम दीप शर्मा ये हमारे डीन एकेडमिक्स हैं. इनका बर्थडे है 24th April to wait a second, 1979. 24th April, Tuesday. Yeah. Anupam Deep, he is my student, I think, if I'm not wrong. Okay. If he's here, he can write down Anupam Deep. Dean, I don't know. Right now, he's with your group only. Earlier, he was with some different group when I knew him. Okay. Physics. All right, sir. Right. Two more. Apurva, September 16th, 1989. Saturday. Wow. Saturday. Okay, sir. Last but not the least, Jasdeep Kaur Dhami, October 8th, 1976. Friday. Wow. Sir, मतलब बस You मैं want to फैन learn? हो गया हूँ अब आपका. I told you, I can teach you in 15 minutes. And Alright, you sir, will it was go to lovely. Google I mean, and try to learn. You will not be able to do it. But in my Yeah. Sunday training, I always teach to everybody that this is because बचपन से ही मुझे फैसिनेशन थी कि ये कोई इतना डिफिकल्ट काम होना नहीं चाहिए. तो जब मैंने इसको कर लिया तो मुझे लगा I can teach to anybody. इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है. Thank you so much Wow. for wonderful comments your audience is writing. yes, Dr. जी. Sangram बहुत सारी saying और that dates will- आ रही हैं, but we can take up these dates later because मेरे पास अभी 2-3 questions और हैं. So sir, moving ahead, Most welcome. if I talk about mind, जो मैंने स्टडी की है और जो मैं अपने सेशंस में बताता हूँ, जो माइंड है वो एक अनस्टॉपेबल हॉर्स की तरह है, जिसका घोड़ा तो हमारा है लेकिन लगाम उसके हमारे हाथ में नहीं है. एंड दैट इज वाई जो माइंड थॉट्स, जो दैट थॉट्स आर लाइक फ्लोइंग वाटर, कि आ रहे हैं जा रहे हैं, यू नो, कमिंग एंड गोइंग, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स, कितने थॉट्स आते हैं हमें दिन में, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स. Sir, how can you relate, or what is a major connection between mind, thoughts and memory? ओके मैं माइंड के ऊपर बहुत स्टडी किया, पर स्टडी करने जी. के अलावा मैंने अप्लाई की ये चीजें. एक मॉन्क हैं, उनकी डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं आपकी ऑडियंस को जरूर बताना चाहूंगा. देखिए कहते हैं मेरा माइंड बहुत भटकता है. एक्चुअल में माइंड नहीं भटकता, हमारी अवेयरनेस भटकती है. माइंड को उन्होंने डिफाइन किया कि यू इमेजिन देयर इज ए ह्यूज हॉल, डार्क हॉल है, उसमें आपकी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं. अच्छी मेमोरीज, बुरी मेमोरीज, जॉयफुल, चीयरफुल, सैड, डिप्रेसिंग एंड इस तरह के एंगर, सब मेमोरीज जुड़ी हुई हैं. अब आपको अवेयरनेस को समझना है कि आपकी अवेयरनेस क्या है. अवेयरनेस इज जस्ट लाइक अ लाइट बॉल जिसमें से लाइट एमिट हो रही है. अब वो आपकी थॉट से चलता है. आप उस लाइट के बॉल को उस हॉल में जहां भी लेके जाएंगे, आपकी जिंदगी उस डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाएगी. तो अब आपको अगर जिंदगी को बढ़िया रास्ते पे लेके जाना है तो आपको कॉमन सेंस बता देगी कि आपको अपनी अवेयरनेस के बॉल को ज्यादा टाइम कहां रखना चाहिए,
डेफिनेटली अगर पास्ट में जाना है तो अच्छी थॉट्स के ऊपर, अगर फ्यूचर के बारे में सोचना तो अपने ड्रीम के बारे में सोचिए। लोग क्या डरी जा रहे हैं, हाय अगर कोविड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो क्या कर रहे हैं, अपनी थॉट से अपनी स्टोरी लिखते जा रहे हैं, खुद ही लिखी जा रहे हैं, फिर बाद में कहते हैं मेरे साथ क्यों हुआ। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है ना तो देयर इज नो रैंडमनेस, वो उसने कहीं ना कहीं सोचा हुआ है, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ किसी न्यूज को देख के उसने, तो इसलिए अपनी अवेयरनेस को अपने कंट्रोल में करना। राइट नाउ आपकी ऑडियंस आपको और मेरे को सुन रही है, तो इस टाइम पे उनकी सोच को मैं कंट्रोल कर रहा हूं। जब वो थिएटर में बैठते हैं तो फिल्म का डायरेक्टर कंट्रोल करता है। वी आर सो यूज टू इट कि हमें कोई कंट्रोल करे, हम नहीं कंट्रोल हो सकते। अगर किसी ने ये आर्ट सीख लिया कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कहां रहना चाहिए, मैं पास्ट में सोचता हूं तो मेरी अच्छे दिन बीते हुए उन पे, कि मेरा वो सेमिनार अच्छा गया था, यूनिवर्सिटी में ये अच्छा दिन था, मैंने गिटार प्ले की थी, मुझे अवार्ड मिला था। मैं ये नहीं सोचता कि कल उसने क्या कहा था परसों। तो माइंड एंड अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर आपने अवेयरनेस को कंट्रोल करना सीख लिया, और 98% लोग ये अवेयरनेस दूसरे के कंट्रोल में देके खुश होते हैं। थिएटर में बैठ के 250 की फिल्म जब देखते हैं तो वो 3 घंटे कंट्रोल होके आते हैं, देन से ओ इट वाज अ मार्वेलस मूवी। अगर वही 3 घंटे आपने ऊपर फोकस कर लिया तो पीपल विल से व्हाट ए मार्वेलस पर्सन दिस इज। तो यही चीज सीखने वाली है, और इसके ऊपर एक दिन में नहीं होता, इट नीड्स प्रैक्टिस। और ये कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो करता हूं। और आप देखिए पास्ट अगर आपका बुरा था या अच्छा था, उसमें हम जाके करेक्ट कर नहीं सकते। फ्यूचर आपको पता नहीं है, तो आपके पास है क्या, प्रेजेंट मोमेंट। एक छोटी सी एक्सरसाइज से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा कि मेक एवरी मोमेंट अ वंडरफुल मोमेंट। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, इससे वंडरफुल मोमेंट क्या हो सकता है। आप जैसे लोगों से, इतने स्टूडेंट से, पता नहीं कहां कहां बैठे हैं पूरे इंडिया में मेरे फॉलोअर्स हैं जो सुन रहे होंगे, उससे बढ़िया मोमेंट क्या हो सकता है। अब जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं कोई अच्छी किताब पढ़ूंगा, कोई अच्छा वीडियो देखूंगा, कुछ अच्छे पीडीएफ देखूंगा, तो नेचुरली वो मोमेंट मेरा अच्छा हो गया। मैं ड्राइव करता हूं तो 8 से 9 घंटे में अपने मोमेंट्स को अच्छा कैसे रखता हूं, सड़क पे देखना, ट्रैफिक देखना, बट मेरी थॉट मेरे कंट्रोल में रहती है, या तो मैं अपने ड्रीम पे हूं या अच्छे दिनों पे हूं। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुश्किल नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। मेक एवरी मोमेंट योर बेस्ट मोमेंट। होगा क्या, लोग ड्रीम तो बड़ा देख लेते हैं, प्रेजेंट में उनको टेंशन है, पता नहीं वो ड्रीम पूरा होगा कि नहीं होगा। अब ये मोमेंट तो आपने खराब कर लिया, एंड आई गारंटी यू अगर आप प्रेजेंट मोमेंट खराब करके फ्यूचर बढ़िया एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट विल नेवर हैपन इन योर लाइफ। अपने मोमेंट अच्छे कीजिए, ड्रीम को भी छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी अपने आप इतने बढ़िया रास्ते पे चलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट, 24 घंटे में से 1 2 3 घंटे तो बढ़िया बनाइए। लोग, उसने मुझे गाली निकाली थी, परसों उसने मुझे ये कह दिया था, परसों मेरे मैं बॉस तो ने डांट यहीं पे दिया था, आने वाला था। छोड़ो यार, बॉस की अपनी प्रॉब्लम। मैं यही आने वाला था यस, सर, ऑन अ वेरी लाइटर नोट। हमारे आजकल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, थिंग्स हैव चेंज, द थॉट प्रोसेसेस हैव चेंज। बट अगर मैं बात करूं कपल्स की स्पेशली, तो अगर एक चीज कोई मतलब कुछ कह देता है हस्बैंड अपनी वाइफ को, तो वो पिछले भी सुना देती है। तो मतलब हम हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में इतना कुछ बैठा हुआ है, हमने बिठा कर रखा हुआ है कि वो सामने आता ही आता है, दैट डिस्टर्ब्स। सो मैं उसी लाइटर नोट पे बात करता हूँ। यू आर ऑल्सो मैरिड विद किड्स एंड वाइफ, आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने ये सब 5 साल पहले छोड़ दिया था? ये क्वेश्चन जेंटलमैन तुमने इसलिए पूछा क्योंकि अब तुम भी शादीशुदा हो, है ना। अदरवाइज अगर 2 साल पहले या 3 साल पहले होता तो तुम नहीं। ये सवाल पूछते ही ना। लेट मी टेल यू, माय फैमिली, मैंने ये सब कुछ अचीव किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली बहुत पॉजिटिव थी। दे आर ऑलवेज एनकरेजिंग मी, और जो चीजें मैं सीखता गया उनके साथ शेयर करता गया ना। मेरे बच्चों, मेरे यंग लड़के हैं, कहते हैं जी फादर और सन की बनती नहीं है, वी आर सो गुड फ्रेंड्स, हम कैरम इकट्ठा खेलते हैं, टीटी इकट्ठा खेलते हैं, जब भी टाइम मिल जाए। दे आर ऑल्सो बिजी, मैं भी बिजी हूँ। मेरी वाइफ, मेरे मदर, दे आर सो पॉजिटिव के हर मेरी सक्सेस के ऊपर पार्टी थ्रो करते हैं घर में और एंजॉय करते हैं। दे आर सो एनकरेजिंग। आई टेल यू, अगर फैमिली पॉजिटिव ना हो तो आप कुछ अचीव बड़ा नहीं कर सकते, रोजी रोटी तक रह जाते हो। और आपका मैं ये चाहूंगा कि जिन लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, कई लोग रिलेट कर रहे होंगे, जो तुमने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो आप धीरे 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 अपने आप को चेंज कीजिए, मोल्ड कीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है ना, आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते। एक तो होता है कि Of course. एक्सटर्नलाइज्ड मेमोरी से नथिंग क्रिएटिव कैन बी डन, जिंदगी जी जा सकती है। उसी तरह से पीस ऑफ माइंड कहां पे है कि अगर मैंने, किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसको जवाब देना धीरे धीरे बंद कर दें, सिर्फ सुनिए, और सुनने के बाद एक बार स्माइल करके देखिए। आप देखेंगे कि जैसे आपका मन है ना, मन को आप ऑब्जर्वर की तरह फोकस कीजिए। आप बैठिए आराम से, आंखें बंद करिए ना करिए, तो जब आप अपने मन पे फोकस करते हैं ना, तो ये मन एकदम घबरा जाता है कि ये तो मेरे को कोई देख रहा है, somebody is watching।
वो थॉटलेस हो जाएगा. दिस इज Right. द बेस्ट वे टू मेडिटेट. Yeah. उसी तरह से अगर कोई कड़वा बोलता है, कुछ कहता है, तो ट्राई टू एब्जॉर्ब इट. हाँ, कभी कभी बोलना भी पड़ता है, कुछ जगह पे बोलना भी पड़ता है, वहां बोलिए, पर दिल को ना लगाइए, उसको बोल के भूल जाइए. कई लोगों को सिखाने के लिए बोलना पड़ता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए नेगेटिव वर्ल्ड एंड देयर आर वेरी फ्यू इडियट्स ऑल्सो. होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बड़े थोड़े से होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएंगे. वो उनका कसूर नहीं होता, उनकी बचपन की प्रोग्रामिंग खराब हुई होती है, उनका नहीं कसूर. दे आर गुड पीपल, पर उनकी बचपन की प्रोग्रामिंग खराब है. उस प्रोग्रामिंग को अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी चेंज कर दे, तो वो भी पीसफुल लाइफ रह सकते हैं. ओके, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है. हस्बैंड वाइफ बहुत बढ़िया. मैंने अपनी चाइल्डहुड को एंजॉय किया, फिर मैंने अपने यूनिवर्सिटी टाइम, कॉलेज टाइम को एंजॉय किया, फिर मैंने जब बच्चे नहीं थे, शादी हुई, उस टाइम को खूब घूमे फिरे, एंजॉय किया. दिस लाइफ आई एम एंजॉयिंग. हर इवेंट को, हर एरा को मैंने एंजॉय किया है. एंड दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू डू के आई वाज एट द एज ऑफ 49 जब मेरे अंदर ये ड्रीम जगा कि ये बचपन का ड्रीम था, मैं देखा करता था, क्या मैं पूरा कर सकता हूँ. लेट्स प्ले सेकंड इनिंग. पहली तो बहुत बढ़िया बीती, लेट्स प्ले सेकंड इनिंग. मैंने सिर्फ इतना ही सोचा, सेकंड इनिंग के लिए रास्ता मेरे सामने, ये मेमोरी वाला पता नहीं कहां से टपका, मुझे भी नहीं पता. एक किताब सामने आई, मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन. वो किताब पढ़ी, पता चला ह्यूमन मेमोरी तो बड़ी कमाल की है. तो मैंने कहा याद क्यों नहीं हुआ आज तक, इतनी एज तक बच्चों को याद क्यों नहीं होता. फिर मैंने इसके अंदर बड़ी डेप्थ में स्टडी किया, उसमें जो रेफरेंस मिला वो बुक ढूंढी, जो मुझे वीडियोस मिले, वर्ल्ड चैंपियंस की बुक्स पढ़ी, तब लगा ये तो मुश्किल नहीं है. तो तब मैंने 1200-1300 फोन नंबर याद किए, लोकसभा 16th एंड 17th लोकसभा याद की, पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ कंट्रीज, पता नहीं क्या क्या किया. कुछ ऐसे काम किए जो दुनिया में किसी ने नहीं किए थे. राइट, तो वो मुझे एक और मेरे ऐसा सारे काम, इवेंट्स जो डेमोन्स्ट्रेशन है सारी पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं. द मेमोरी ट्रेनर के नाम पे मेरा फेसबुक पेज है, सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएगी. यस. सर एक और आप मिस कर गए हो, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग, आपने मोर देन 1000 और नियर अबाउट 1200 renowned पर्सनालिटीज, बॉलीवुड स्टार्स, 1500 पॉलिटिशियंस एंड 1500 बर्थडेज. क्रिकेटर्स का भी बर्थडे याद किया है. सो अगेन एक हाँ जी, क्विक हाँ सी जी, हाँ जी. डेमोन्स्ट्रेशन है. ऑलराइट गाइस, श्योर अगर श्योर. आपने भी कोई पूछना है कोई रिनाउंड सेलिब्रिटी का बर्थडे, तो वो सर आपको ऑन द स्पॉट बताएंगे किस दिन उनका बर्थडे है. सर मेरे पास कुछ नाम है, सो लेट्स स्टार्ट. एवरग्रीन माय फेवरेट, माधुरी दीक्षित. माधुरी दीक्षित 15th May 67. वाओ. अच्छा गाइज, ये कुछ प्री डिस्कशन नहीं हुई है, एवरीथिंग इज इम्प्रॉम्प्टू. उनको कुछ नहीं पता मैंने क्या पूछना है. एंड यू गाइज ऑल्सो कैन सेंड इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपने किसी के बारे में या किसी रिनाउंड क्रिकेटर, पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी के बारे में का डेट ऑफ बर्थ जानना है, सो कमेंट सेक्शन में लिखिए. सर एक बहुत नेक्स्ट अच्छा इज कमेंट शीला पीछे में पढ़ दीक्षित. रहा था, बहुत अच्छा कमेंट था. वी हैंड ओवर अवर रिमोट कंट्रोल. मुझे सिर्फ इतना ही दिख रहा. whosoever is written that is absolutely right कि हम अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं और वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में करना. ओके, कैरी ऑन प्लीज. राइट सर. ऋतिक रोशन, अश्विनी राणा जी ने पूछा है. 10th January 74. अश्विनी जी क्रॉस चेक कर लीजिएगा. राइट सर. ओमी नेक्स्ट इज वैद्या का शीला भी सेम डे दीक्षित. है. ओमी वैद्या का 10th January ही है, ओमी वैद्या, और उनका 82 है. और इसी तरह कल की एक एक्ट्रेस है, उसका भी 10th January है, उसका 84 है. 3 जने हैं इस डे पे फेमस. यस. Sir, next is birthday of Mr. Rahul Dravid, cricketer. It's 11th January 73. Sir, MS Dhoni. MS Dhoni 7th July 81. Wow, wow, wow. Okay, sir, Karan Johar. 25th May 72. All right, sir. Sushant Singh Rajput. Somebody has commented. Suman. He is, I think, 21st January to 2nd October 81. There is little bit. 81 है, 2nd October या 21st January, इन दोनों में से एक डेट है. 81 is Okay. pretty sure. Sir, last but not the least, Anushka Sharma. 1st May 88. धोनी का भी धन्य हैं पूछोगे आप. 5th November 88. धन्य हैं आप. अब आप ये देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, ये कैलकुलेट कीजिए. विराट कोहली, अनुष्का. 1st May 88. दोनों Alright. 88 के हुए, एक 5th November, एक 1st May. ओके, तो कौन बड़ा हुआ आपको पता? I mean, बहुत मैंने कुछ सीखा है, ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा है, एंड मेरा मन नहीं कर रहा है इसको एंड करने के लिए, बट एंड अगेन टाइम रन कर रहा है, एंड कहाँ पर 1 hour होने भी वाला है, एंड मेरे को पता भी नहीं लगा. सो ये होती है एक परफेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन अ गेस्ट.
सो आप इतने मोटिवेशनल फिगर हैं एंड सबने इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं. सो आई मीन आई सैल्यूट टू योर करेज एंड योर आई वुड से इट्स अ टैलेंट, बिकॉज ये हर कोई, आप बोलते हो हर कोई कर पाता है, बट आई डोंट थिंक सो के लाइक अगर मैं भी चाहूँ आई कैन नॉट डू दैट. I believe that. So I Don't appreciate say your I believe courage. that. Always say I can do it. Whether you are trying or not doesn't matter. Okay? Of course. Say always. Teach to Always. your students also. For sure, sir. For sure. Sir, last but not the least, It was obviously a जाने wonderful से पहले, interaction with you. Wonderful. It thank you was so much, wonderful sir. interaction with you. जब मैं थोड़े बहुत messages पढ़ पा रहा था, they were very positive messages. Yes, yes, Thank you yes. so much for wonderful audience in Sir, giving me जाने time से to पहले interact with आपको, your. मेरा हर सेशन इनकम्प्लीट होगा अगर आपने कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए, आज की यूथ के लिए, और ऑब्वियसली ऑफ कोर्स जो यंग टीचर्स हैं यहाँ पर, एक मोटिवेशनल से वर्ड्स जो वो मेमोराइज कर पाए फॉर एवर. देखिए कमलप्रीत, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप हैप्पीनेस क्लब ऐसा चला रहे हैं, बट हमें देखने वाली बात यह है कि जो हैप्पीनेस क्लब में आते हैं क्या वो घर में भी खुश रहते हैं कि नहीं रहते. और मैं हमेशा एक ही बात आपके ऑडियंस को कहूंगा कि जिस दिन आप अब घर में, यहाँ पे हम हैप्पीनेस क्लब में हा 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 करके गए और बड़ा ही मजा आया, घर जाके फिर वही अगर शुरू हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं होता. मैं इसलिए कहता हूं कि इन चीजों के ऊपर वर्क करना बड़ा आसान है, आसान हो जाता है अपने माइंड के ऊपर वर्क करना, अगर हम अपना ड्रीम फाइंड आउट कर सके. क्योंकि हमें या तो डंडा ड्राइव करता है या ड्रीम, और तीसरी चीज डर है. डर के कारण लोग ड्राइव हो रहे हैं, डंडे के कारण ड्राइव हो रहे हैं. बॉस ने सुबह आके शक्ले मंडे फोबिया हो रहा है कि मंडे को वहीं जा रहे हैं जहां पसंद नहीं है. बट अगर आप अपना ड्रीम फाइंड आउट करें, जब मैं ड्रीम बोलता हूं तो एक आध फाइल फोल्डर सामने आना चाहिए. अगर एक फोल्डर आ रहा है ना सामने तो वही आपका ड्रीम है. अगर बार बार बदल के आ रहे हैं तो कॉपी पे लिखिए और शॉर्टलिस्ट कीजिए. जिस दिन आपको ड्रीम मिल गया, मेरे को या कमरप्रीत को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे. 100 किताबें पढ़ने को कहा जाए पढ़ोगे, आप सब कुछ कर लोगे. बट ड्रीम के बिना एक दिन की मोटिवेशन, ऐसी तो यूट्यूब भरी पड़ी है ऐसी मोटिवेशन से. अगर इस मोटिवेशन से होता तो सारी दुनिया ही बदल जाती. गूगल और यूट्यूब तो खजाना है. बट चक्कर तो ये है कि ज्यादा चेंज क्यों नहीं होती दुनिया, क्योंकि दे आर नॉट, कोई ड्राइव नहीं करने को नहीं है. तो यही मैसेज है कि ड्रीम पे वर्क करो, ड्रीम पे वर्क करो. और जिस दिन आपको ड्रीम मिल गया, 10 साल भी लग गए ना ड्रीम, डोंट वरी, बाकी की जिंदगी अभी बहुत पड़ी है आप लोग, आप यंग हो, राइट. So this is the message I give to everybody. मैं छोटे छोटे टॉपिक्स कवर नहीं करता, मैं सिर्फ ड्रीम को कवर करता हूँ कि सबका ड्रीम फाइंड आउट करवा दूं, दैट्स इट, और कुछ नहीं. तो आई होप आई वाज अप टू योर मार्क, एंड मैं जो मैसेज देना चाहता था, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी इन. इट वाज अ वंडरफुल to have you here on board on the official page of City Group and City University. So thank you so much for your आपसे इंटरेक्ट करना एक अपने आप में प्लेजर है. यू आर जेम्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट. हम आपकी बहुत तारीफ, जब भी बैठे मैं और मेरे फ्रेंड, आपको पता है, तो तुम्हारा जिक्र जरूर होता है. तो स्टूडेंट्स मैं आपको कहूंगा, कमरप्रीत को पकड़ लो बस, जो इससे सीख सकते हो ना इससे सीख लो. ये हमारे मतलब मैं इस फील्ड का माहिर है, मैं आपको बता दूं, है ना. और आपने हमारा जेम पकड़ा हुआ है तो उसका पूरा फायदा उठाओ. बताओ इनको कि क्या मुझे सीखना क्या है. He'll guide you to everything, right? So this is the message I wanted to give. He's such a brilliant student. My best wishes for you and for your institute also, and your management, your MD, whosoever is behind this show. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. I'm looking forward, और हम सब looking forward हैं कि आप और नए records बनाएं और हमारा नाम और पूरे देश का नाम रोशन करें. So thank you so much and God bless you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Alright guys, so this was the amazing, unique personality amongst us, Professor Kuvar Rajiv. And भले ही उन्होंने 25 साल टीचिंग करी है, लेकिन I want to say one thing, उन्होंने प्रूव किया है age doesn't matter and learning is an ongoing process. आप till last breath आप कुछ ना कुछ सीखते हैं. But again उन्होंने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया है. हम this is a motivational session. आप वीडियोस भी बहुत सुनते हैं, लेकिन अगर अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी, so nobody can वो जो ड्राइव है जो आपको आगे लेके जाएगी, तो वो अगर वो नहीं है तो nobody can change you. So yes, अपनी ड्रीम को रियलाइज कीजिए और एक अंदर जो आपके विद इन सेल्फ है,
बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल टाइम ऑफ कोविड, जब आपके पास टाइम है बिसाइड्स ऑनलाइन क्लासेस, आप अपने सेल्फ के ऊपर काम कीजिए, एंड देन यस यू कैन सी, यू कैन चेंज, यू कैन डू वंडर्स एंड चेंज द एंटायर लाइफ. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड यू नो इतनी पार्टिसिपेटिव आप मोड रहा है इस पूरे सेशन का. सो थैंक यू सो मच, एंड आई प्रॉमिस हम जल्दी से एक और नए रिनाउंड पर्सनालिटी के साथ आएंगे जो कि एक रे ऑफ होप है हमारे सोसाइटी के लिए, बिकॉज हमारी जो सीरीज का नाम है वो भी है एक किरण. सो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, एंड यस कीप स्माइलिंग, and yes, keep studying as well. Thank you so much.